जैसा बनना है वही सोचो, जैसा बनाना है वही सोचो। उसके अलावा कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये चैनल पे हम सारी चीज़ें लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में बात करते हैं। आई होप माय चैनल इज हेल्पिंग यू अ लॉट बिकॉज आई एम ब्रिंगिंग आउट कंटेंट pretty much every single day to make you and help you understand that you are limitless. There is nothing you cannot achieve, impossible जैसा कुछ बना ही नहीं है. Okay? And one saying that impossible also says I am possible. So, with this information, let's get started with this video. And before that, if you are interested in this content, I post daily and I post amazing content. So consider subscribing to my channel. And if you want to take one-on-one coaching with me, all the description में सारी details दी है. You can WhatsApp me or mail me, whatever is comfortable for you. And let us get started with our favorite topic, RSPs, and how to recreate this SP. Okay, so recreation के पहले I just want to address this fact कि ना बहुत लोगों के मन में गिल्ट होता है कि मैं ये इंसान को बदल रही हूँ. दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ मॉरली रॉन्ग एंड ऑल एक्सेट्रा. मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ दैट आप उस इंसान के साथ कुछ भी नहीं कर रहे होते हो. आप अपने मन में उसके बारे में अच्छी अजम्पशंस बना रहे होते हो. उसके हिसाब से वो इंसान वैसे ही आपकी रियलिटी में प्रेजेंट करता है खुद को. इसमें क्या बुरा हुआ? आप अपनी नोटबुक में आप इस इंसान के बारे में अच्छा लिख रहे हो, उसमें क्या बुरा हुआ? कुछ बुरा नहीं है इसमें. यू आर जस्ट चेंजिंग दैट अजम्पशन एंड यू आर डूइंग ऑल ऑफ इट इन योर माइंड, इन योर डायरी, in your words max. That's it. And you can see changes in that specific person the moment you start affirming. You are shifting into that reality where things are happening in your favor. There are thousands infinite realities and you are just selecting one of them. उसमें कुछ गलत नहीं है. So please don't say or don't judge anybody else's success story as well. It's because कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा होता है. Okay? You are just changing your assumption. In one reality, he's still very happily married with someone else. In some reality, he's happily married to you. You are just selecting that version of him. There are so many, in fact, there are so many realities where you are also happily married to someone else, but you are embodying that state where you know that you are happily married with your SP. Okay? So just throwing around facts कि ये सारी चीज़ें हैं. You just have to have faith in the unknown जब तक वो आपकी रियलिटी में सॉलिडिफाई नहीं हो जाता. यू जस्ट हैव टू कीप परसिस्टिंग, चाहे दिखे ना दिखे. रादर दैन बिलीविंग इन योर फियर्स, वाई नॉट बिलीव इन योर फेथ? आप दोनों ही नहीं देख पाते हो तो वाई नॉट चूज फेथ? आपको पता है ना कि फियर्स चूज करने से रिजल्ट्स एविडेंटली नेगेटिव ही होने वाले हैं, राइट? सो वाई नॉट चूज फेथ? सो टॉकिंग अबाउट रिक्रिएटिंग योर SP, हाउ डू यू डू दैट? पहली चीज़, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जब आप रिलेशनशिप में आए होंगे. जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने कोई तो अच्छी चीज़ देखी होगी इंसान में. दैट इज़ वाई यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ हिम. एंड देन ओवर द टाइम एक कोई तो गलत चीज़ हुई होगी. सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने उस इंसान के बारे में एक नेगेटिव अजम्पशन बना के उस अजम्पशन पे अपने दिमाग में स्टोरीज बनानी चालू कर दी होगी. आई एम सेइंग इट अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली. Suppose you manifested cheating, and yes, you manifest cheating ऐसे ही नहीं होती. It comes from lack of self love, lack of self concept. इसका रीज़न ऐसा है कि आप सोचने लगते हो कि मैं इस इंसान को कुछ नहीं दे पा रही हूँ. He needs something, I am not fulfilling him completely. I am not enough. So that is how you manifest cheating. When you think that you are enough, I am everything that he has ever wanted, then automatically your subconscious mind starts showing you that this person is loyal to you and nothing else is ever going to come between you two. Okay, so that is also a part of your self concept, and I always tell people that keeping your self concept high is very important. So that is how you manifest disloyalty. Okay, so the thing is that आपने एक चीज, एक सेंटेंस की पूरी कथा बनाई होती है which does not even work in your favor, then what is the point?
So what I would advise is do this one exercise and compulsorily do it. ऑन लेफ्ट हैंड साइड दो पेजेस लो. लेफ्ट पेज पे आप लिखो जो भी चीज़ें आपको कंप्लेन वर्दी लगती है कि अच्छा ये लॉयल नहीं है, ये मुझे टाइम नहीं देता, ये ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, एक्सेट्रा. आई डोंट वांट टू लाइक स्पीक नेगेटिव बट यू गेट माई पॉइंट. राइट साइड में अच्छी चीज़ें लिखो और जो आपने लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिखी है ना, एक सेंटेंस नेगेटिव उसको फ्लिप करके एक सेंटेंस पॉजिटिव. एंड ये सब लिखने के बाद आपको अपनी पॉजिटिव लिस्ट में ओवर एग्जैजरेट करके डालनी है चीज़ें. लाइक ही इज़ सो ऑब्सेस्ड विथ मी, मेरे बिना इसका पत्ता हिलता नहीं है. दैट्स अ स्टूपिड एग्जांपल. मेरे बिना इसकी दिन की शुरुआत नहीं होती है, मेरे बिना ये सो नहीं पाता, ये पागल है मेरे पीछे, उसको मेरे सिवा और कुछ नहीं दिखता, वो किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता. एग्जैजरेट करो अपने एफर्मेशंस को. Because you, my love, deserve every good thing out there. अगर आपको किसी से प्यार है, आप एक रिलेशनशिप में हो, मेक श्योर यू मेक इट द बेस्ट रिलेशनशिप एवर. एंड आप बहुत लकी हो कि आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला है, थ्रू विच यू कैन क्रिएट योर ओन फ्रिकिंग रियलिटी पार्ट बाय पार्ट. कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो आप. सो वाई नॉट वेन यू हैव अ पार्टनर, मेक हिम द बेस्ट. आप उसके बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बोलो कि यार ये इतना प्यार करता है, मैं ही परेशान हो जाती हूँ कि कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे. ये सारी चीज़ें बोलो. आपको क्या ही करना है, आपको बोलना ही तो है, आपको एग्जैजरेट ही तो करना है, कंसिस्टेंसी तो रखनी है. और 3D को भाव मत दो. इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टू ब्लॉक दिस पर्सन, इफ़ यू फील लाइक इट, आई एम नॉट सेइंग यू टू एक्चुअली डू इट. इफ यू फील कि हाँ ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, आई डोंट वांट टू लाइक, आई वांट टू फॉलो माय नाइस मेंटल डाइट, आई वांट टू फॉलो माय सेल्फ कॉन्सेप्ट, माय सेल्फ लव एंड माय अफर्मेशंस. तो आपकी मर्जी, आप कर दो. अगर आपको इरिटेट हो रहा है वो ब्लॉक करने से, या फिर एक डिस्ट्रैक्शन हो रही है, वो ब्लॉकिंग पे जा रही है आपका पूरा थॉट प्रोसेस, या फिर आपका अटेंशन, तो वो मत करो. ओके इतना ही करना आपको. इट्स वेरी सिंपल. वंस यू गेट दिस डन ना, आप कोई भी चीज़ बहुत ईज़िली आगे से मैनिफेस्ट कर लेते हो. सो डू दैट फर्स्ट. कि जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एफर्मेशंस एंड एवरी आवर एक एक बार पढ़ लेना, एक बार लिख लेना. इफ़ यू आर अ स्क्रिप्टर यू कैन राइट इट एवरी आवर इफ़ यू वांट. इफ़ यू आर नॉट अ स्क्रिप्टर यू जस्ट राइट इट वंस एंड देन जस्ट रिपीट इट. जब टाइम मिले रिपीट करो, अच्छे मूड में हो रिपीट करो. इफ़ यू सी समथिंग ऑपोजिट और रिपीट करो. व्हेन यू सी समथिंग ऑपोजिट, दैट इज़ द टाइम वेयर यू हैव टू परसिस्ट. और उस ऑपोजिट हुआ है ना जो, उसको अच्छा मीनिंग दो कि ग्रेट, दिस इज अ पार्ट ऑफ इट, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी manifest my desire. It's already done. This is just a bridge of event. It's happening. I know it's happening. Be happy about it. Do not give it negative meaning. रिवर्स मत जाओ, आगे जाओ, हमेशा आगे जाओ. जो भी होता है वो टैकल करना सीखो. डर के कुछ नहीं होने वाला है. इफ़ यू वांट इट यू गेट इट. ओके सो डू दीज थिंग्स, बी कंसिस्टेंट. जितना भी टाइम मिले, डू सेल्फ लव. जस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ. क्रिएट थिंग्स, बी so happy and get into that knowing कि it is already done. अगर मैं ये सोच पा रही हूँ, that means ये किसी भी वक्त मेरी रियलिटी में आ जाएगा. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट हाउ, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हेन, आई नो इट्स ऑलरेडी डन. एंड देन एक मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज को लेके भी अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाओ दैट वट एवर आई वॉन्ट कम्स टू मी एफर्टलेसली. आई मैनिफेस्ट वेरी इजीली. जब से मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, मेरी लाइफ अचानक से बहुत ईजी हो गई है बिकॉज आई रियली गेट वॉट आई वॉन्ट. ओके इतनी ही चीज़ें करनी है. एंड रियली आई वुड एडवाइज यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव एंड योर सेल्फ कॉन्सेप्ट बिकॉज एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर. जो आप डिज़र्व करते हो, आपको लगता है आप वर्दी हो, वही चीज़ें आपके साथ होती है. आपको अगर लगता है आप ये रिलेशनशिप के वर्दी हो, देन यू गेट इट. आई मीन यू कैन गेट इट एनी वे, बट वाई नॉट लाइक सस्टेन कि मैं वर्दी हूँ. वाई डोंट यू कीप योर सेल्फ इन ऑन अ पेडिस्टल. यू कीप योर सेल्फ ऑन अ पेडिस्टल ऑलवेज. आप उस रियलिटी में, यू आर attracting, you are not chasing.
So be in that energy. Self concept helps you to be in that energy where I am the source, I am the creator. मेरे अलावा मेरे रियलिटी में कुछ और मैनिफेस्ट कोई और मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता है. Circumstances do not matter, there is always movement. जिस टाइम आपने एक अफर्मेशन भी चालू कर दी ना, वहाँ पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. आपको दिखता नहीं है बट देयर इज ऑलवेज मूवमेंट. आपको वो खत्म होने के बाद मैनिफेस्टेशन तब समझेगा कि अच्छा बैकग्राउंड में ये हो रहा था, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा ये 24 घंटे मेरे बारे में ही सोच रहा था, ओके, नाउ आई बिलीव एवरीथिंग. ओके. और लाखों सक्सेस स्टोरीज है, अगर डिमोटिवेट हो जाते हो सक्सेस स्टोरीज देख लो. बट गिव अप मत करना. दिस इज योर रियलिटी. You can change anything, everything. Do not give up. Okay. So that's it for today's video. And if you have any questions, you can let me know in the comments. And happy manifesting, guys. You've got this. I know you've got this. I love you all so, so, so much. You are the best. You are the queen. You are the king. You are a master manifester already. Okay. Bye.